आदाब नाजरीन, मैं सबा नाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर एंड माही बैंकेट। नाजरीन, रुक करते हैं खबरों की जानिब। सोमवार के रोज रानीगंज में सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो रुकन सूर्यकांत मिश्रा ने एक पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर जमकर तनकीद की और कहा कि भाजपा पूरे देश में सीपीआईएम की पहली सियासी दुश्मन है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में उनकी लड़ाई न सिर्फ भाजपा से है बल्कि टीएमसी के खिलाफ भी है और उन्होंने दोनों सरकारों की पॉलिसियों पर जमकर तनकीद की। आगे सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि चुनावी मैदान में टीएमसी और भाजपा के खिलाफ तो रहेंगे ही, साथ ही उसके अलावा सड़कों पर भी उतरकर उनके खिलाफ अपना एहतजाज करते रहेंगे। प्रत्येक दिन बोलছি, প্রত্যেক দিন পেজে পোস্ট হচ্ছে, প্রত্যেক দিন টুইটারে পোস্ট হচ্ছে, আর যেখানে যাচ্ছি বক্তৃতা কেউ দেখতে পারে, কিছু গোপন তো নেই। সারা দেশে বিজেপি এক নম্বর শত্রু, পশ্চিমবাংলা তার ব্যতিক্রম না। কিন্তু এখানে তৃণমূল বিজেপি বিরোধী সমস্ত শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তারপরে নির্বাচন ইত্যাদি হচ্ছে, তারপরে কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে থাকতে হবে, জনবিরোধী নীতিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই। এই হচ্ছে এক মূল কথা। দিল্লিতে প্রথম থেকে সমর্থন করেছি, আমরা তো অংশীদার থাকি এবং আমরা খালি নয়, সমস্ত বাম দল তারা কালকে প্রতিবাদী ছিলেন, প্রতিবাদের সমর্থনে ছিলেন দিল্লিতে এবং একে যে ভবন, একে গোপাল ভবনের সাमने তারা ওখানে প্রতিবাদে शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ सूर्यकांत मिश्रा के जरिए लगाए गए इल्जामात को लेकर जब बीजेपी नेता राजेश मंडल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये बात सभी लोग जानते हैं कि यहाँ कोयले की गैर कानूनी कारोबार की शुरुआत किसने की थी और साथ ही ये भी कहा कि सीपीआईएम के बाद अब इस कारोबार की कमान टीएमसी के हाथों में आ गई है और कहा कि आने वाले वक्त में ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सूर्यकांत मिश्र बोलते पारेन কেন কি গোটায় বাংলায় বা আমরা শিল্পাঞ্চলে এখানে কয়লাঞ্চলে বাস করি, আমরা ভালো করে জানি আর গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষ জানে কি 2 নম্বর কয়লার কাজ শুরু কে করেছিল আর টিএমসি কে রাস্তাকে দেখাচ্ছে এখন পর্যন্ত। তো সিপিএম আর টিএমসি মিলে আজ পর্যন্ত কয়লার কাজে জড়িত আছে, তার প্রমাণ আপনি কিছুদিন ওয়েট করুন। বিজেপি এটাতে আছে কি না আছে তার প্রমাণ আছে, কিছুদিন আগে থেকে সিবিআই রেড চলছে, এবারে তো দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে, কিছুদিন ওয়েট করুন। কে জড়িত আছে সবার ঘাম ছুটতে শুরু হয়ে গেছে, सीपीएम हो चाहे टीएमसी हो, কিছুদিন ওয়েট করুন। वहीं इस सिलसिले में जब टीएमसी रहनुमा पूर्णशशि रॉय से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। এটা সিপিএম পার্টি, তারা পার্টির কোনখানে কি অফিস করবে, জেলা অফিস করবে, জোনাল অফিস করবে, কিন্তু বিষয়টা অন্য জায়গায়। ব্যাপারটা হচ্ছে 2019-এ বামের রামের ঘরে ভোটটা দেওয়া করায় সারা বাংলা জুড়ে, আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও হয়েছে। 21-এর নির্বাচন আসছে, তাই সূর্যবাবুরা হঠাৎ তড়িঘড়ি ওই জেলা অফিস করলেন রানীগঞ্জে, যাতে ওনাদের যে ভোটটা বামেদের, সেই ভোটটা ওরা রামেদের ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারেন। ওনারা ভুল করছেন। 2019-এ সিপিএম পার্টির ভোট বা ওদের যে ফ্রন্ট আছে, ফ্রন্টের ভোট রামেদের ঘরে পাঠিয়ে সারা বাংলায় একটা বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করছে বিজেপি পার্টি। এটা সকলেই জানে, বাংলার মানুষ জানে যে এটা সাম্প্রদায়িক দল। তো আমি সূর্যবাবুকে এটুকুই বলতে চাই যে আপনাদের পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, নিজেরা লড়াই করুন, আপনাদের ভোটটা রামের ঘরে কেন পাঠিয়ে দিচ্ছেন? তো তারই প্রস্তুতি আজকে সূর্যবাবুরা রানীগঞ্জে নিলেন, যে রানীগঞ্জের অফিস থেকে বসে, জেলা অফিস থেকে বসে এই পশ্চিম বর্ধমান জেলার যাতে রামের ঘরে ভোট যায়, রামের প্রার্থীরা জিতে। আমরা এই বিষয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করি না, কারণ আমরা জানি পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস এবং সিপিএম অস্তিত্ববিহীন, এদের কোনো অস্তিত্বই নেই। তো আমাদের সরকার, আমাদের যিনি নেত্রী, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেত্রী, উনি প্রমাণ করে দিয়েছেন বাংলার মানুষ, মামাটি মানুষ আমাদের সাথে আছেন এবং তৃতীয়বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন বাংলার মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে। সূর্যবাবুরা এই কাজ যেন আর না করেন, বামেদের ভোটটা রামে পাঠিয়ে না দিয়ে। नामी कंपनी की अगरबत्ती फर्जी तरीके से बेचने और बनाने के इल्जाम में इस्माइल के पप्पू को पुलिस ने हिरासत में लिया। अंबर अगरबत्ती के मोहम्मद अनवर ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि एक नामी कंपनी की अगरबत्ती को वो लोग तैयार करते थे, लेकिन इस्माइल में उसी नाम से फर्जी अगरबत्ती बनाकर सप्लाई की जा रही थी। 3 कार्टून अगरबत्ती को जब्त कर लिया गया है।
हैप्पी नाइट अगरबत्ती का ब्रांड है, उसका बहुत सारे लोग कॉपी करके 2 नंबर माल बनाते हैं, तो उसमें अभी एक आदमी अभी रेड हैंड पकड़ाया है माल के साथ, 2 नंबर माल के साथ। कितना का माल पकड़ाया है? अभी 3 कार्टन माल है। लगभग कितना होगा? लगभग 20,000 रुपये का है। तो इसका क्या एजेंसी आपका था क्या? नहीं, हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। इसका कॉपीराइट ट्रेडमार्क सब हम लोग के नाम से। अच्छा। और ये कहाँ से माल आ रहा था? ये माल अभी इस्माइल से आ रहा है, इस्माइल आसनसोल से। हाँ, वहाँ डुप्लीकेट बनता है इसके साथ। इनके साथ कोई आदमी भी पकड़ाया है क्या? हाँ, इनके साथ जो इसका आदमी है, जो मालिक है, वो पकड़ा है। क्या नाम है उनका? उसका नाम है पप्पू हम लोग जानते हैं। कहाँ का बासिंदा? इस्माइल का। पश्चिम बर्दवान तृणमूल माइनॉरिटी सेल की जानिब से आइंदा 10 दिसंबर को एक अजीमुशान जुलूस का इनकाद किया जाएगा। आज इसी सिलसिले में ओशा ग्राम में वाक़ अग्निकन्या भवन में गुलाम सरवर और नसीम अंसारी की क़यादत में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मौके पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि हम लोग हमेशा सियासत से दूर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र और इस जालिम हुकूमत के खिलाफ हम लोग दीदी के हाथों को मजबूत करने की गरज से सियासत में दाखिल हो रहे हैं। इस मौके पर तृणमूल माइनॉरिटी सेल के ब्लॉक प्रेसिडेंट औरंगजेब खान उर्फ बूढ़ा खान ने गुलाम सरवर और नसीम अंसारी को गुलदस्ता पेश किया। साथ ही मौके पे वसीमुल हक, अख्तर हुसैन और हिना खातून मौजूद थी। आंधी तूफान अगर चलती है उसे रोकने का शक्ति होना चाहिए। गुलाम सरवर एक आंधी तूफान के समान किसी के पास नहीं है, और यही असली माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन है और यही असली लोग है। वो बच्चा सब जगह मसीह भाई को मारा जा रहा है, लीडर लोग को मारा जा रहा है। तो आने वाले समय में ये हम लोग को और यूनाइटेड होना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पास्टर हैं, फादर हैं, हम लोग कॉलीग लोग हैं। हम लोग चाहेंगे तो उन लोगों को ग्रास सकते, उन लोग को कांग्रेगेशन, उन लोग के चर्च में जो मेंबर लोग हैं बहुत सारे, एक बार वो लोग बोले सब तो 10 मेन बात है, हम लोग एक्चुअली क्रिश्चियन लोग हैं, हम लोग कोई पार्टी गिटी में हम लोग भी जोड़कर काम नहीं करते, लेकिन आजकल का जो सिचुएशन को ऐसा हो गया ताकि हम लोग को इतना धार्मिक अत्याचार किया जा रहा है। हम लोग अपना मर्जी से जो इतना साल से हम लोग जैसा हम लोग अपना भगवान को अपना धर्म का हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, उसमें बहुत प्रकार की बाधा होने के कारण हम लोग भी आप लोगों के साथ माइनॉरिटी के साथ मिलकर खड़ा होना अभी यहाँ पर हम लोग को मजबूर हो गया। इसी कारण से हम लोग आ रहे हैं ताकि हम लोग को किसी तरह की पॉलिटिक्स का दे नहीं है, लेकिन हम लोग प्रोग्राम हम लोगों का 10 तारीख को है, जो हम लोग 11 बजे गिरजा मोड़ से कोलकाता बाजार तक हम लोग एक जुलूस के शक्ल में महाजुलूस हम लोग लेकर के आएंगे, दिखाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी से जिंदा है। और दूसरा कि हम लोग जो माइनॉरिटी, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, तो इन लोग के साथ जो ज्यादती है, जो परेशानियां हैं, उसको देखने का भी हम लोगों को जरूरत है। सिर्फ कमेटी बनाया और वहीं पर हम लोग महदूद हो गए, ऐसा नहीं होगा। हम लोग चाहेंगे कि वो लोग, जैसा कि सर कह रहे थे, बेशक सही है, हम लोग ने तमाम जो लोग हैं, हम लोग के डिस्ट्रिक्ट कमेटी और ब्लॉक प्रेसिडेंट, इनका तमाम हम लोग एक तो ग्रुप कर दे रहे हैं। वो आप व्हाट्सएप पर तमाम मैसेज देख लीजिएगा। वो ब्लॉक बनाने का जो सिस्टम होगा, वो सिस्टम हम लोग दे देंगे कि आप इस प्रोफार्मा के तहत सिस्टम से आप बनाइएगा। और साथ साथ उन लोगों को मेंबर बनाने होगा। मेंबर के साथ साथ हम लोग चाहेंगे कि वो तमाम मेंबर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो एक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होगा। कुल्टी बोरो 10 की जानिब से बोरो दफ्तर में खून अतिया कैंप का इनकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह मकामी एमएलए उज्जवल चटर्जी ने फीता काट कर किया। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतजामी बोर्ड के रुकने देबिंदो भगत ने मेहमानों को एजाज से नवाजा। 71 नंबर वार्ड के साबिक काउंसलर अरुण भंडारी ने सबसे पहले खून अतिया किया। मजमूई तौर पर 43 लोगों ने खून अतिया किया।
आज बोरो 10 में कुल्टी ऑफिस में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। एएमसी में एडमिनिस्ट्रेटर लागू होने के बाद बोरो 10 का जो मेंबरशिप मिला है वो देवबंधु भगत जी को मिला है, जो कि एएमसी में 93 नंबर वार्ड के काउंसिलर थे और हेल्थ के एमआईसी थे। बहुत ही अच्छा काम 5 साल उन्होंने अंजाम दिया। और आज जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, जो ब्लड टीम यहाँ आई है आसनसोल ब्लड बैंक से, उनका हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार है कि बहुत ही अच्छा उनका वर्क रहा है, रहता है। और जितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है उनका भी हम लोग बहुत दिल से आपकी टीम के लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया है? बहुत से लोग हम लोग के साथ में भी आए हैं, हम लोग के वार्ड से भी आए हैं, हम लोग के इलाके से पूरे कुल्टी के लोग लगभग सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त भी दिया और ब्लड डोनेट किया। मैं मोहम्मद जीशान अंसारी। आयोजन करा হয়েছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে আমাদের আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র বর্তমানে আমাদের বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের চেয়ারম্যান মাননীয় জিতেন্দ্র তৈরির নির্দেশ অনুসারে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা হয়েছে। আর এই ক্যাম্পে আজকে প্রচুর মানুষ এখানে এসেছিলেন, ব্লাড দিয়েছেন এবং রক্তদান মহাদান এই দানকে আমরা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এই কাজগুলো করেছি এবং যে মানুষের যেন রক্তের অভাব না হয় সেই কারণে যেন আগামী দিনে আমরা এই ধরনের ক্যাম্প আরও আমাদের বাকি আছে আমরা করব। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर इस्माइल आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।